which is also known as Zoo Hospitals, Rajasthan. Okay. And BA and MBA from Maharaja Ganga Singh University. I want to be successful with the work. Next please, fast. I'm Sarika. I'm pursuing MS Geography from Maharaja Ganga Singh University. I belong to Shabul side, Okay. and I become a successful. Okay, enough. Your name and your name is please. I'm Ritu Pava. I belong to Arana. Okay. I'm Ahmedabad and I have also done a diploma in pharmacy. Very good. Next please. I am Jyoti Kupan. I am MBA from Ajmer. Next please. I am Mamta Chandani. I am graduate in arts from Ajmer University. Next please. Hello, I am Shirin Bhatia. Okay. I completed my graduation. I am Bachelor of Arts from Maharaja Ganga Singh University. I am applied IPS officer. Next please. My name is Purnama. I my program. My name is Kavita Basan. I am geography. Next. University. My name is Next. I am Himanshu Gambhir. I am graduate with Peck University, Chandigarh. I want to be a successful medical. Next. Next. Dipanshu. And functional from Shivmar, interview from Jaipur. Next please. I'm Narendra Singh. I got BSc Nursing from Rajasthan University of Health Science. Next please. I'm Sudhir Singh from Srinagar and I'm graduate in nursing. Next. I'm Ravi Singh. I'm working as superintendent in charge in Srinagar. Next kids. आपकी नई तो My name is Ariom. I am from Kumaravata. I am into my spoken. I'm Rafi. I'm Rasima. I'm pursuing Next. I am Sia Singhal. I am pursuing 5th standard from Mosty Public School, and my aim is to become doctor. Okay, students, come back on our topic, that is tenses. Are you all ready to learn English tenses? Okay. Today we will have twin combination. We will learn tenses with vocab building. Okay. I want my colleagues to develop their vocab, and we will learn some interesting vocab. Okay. We will have some interesting vocab for all of you, and we will try our best in between हम लोग उन words को use करते रहेंगे. When we are going with the word tenses, it's quite interesting and very dynamic also. See, students, any language, whether it is Hindi, whether it is English, or whether it is Punjabi, whatever language, please open your notebooks. I want that you should write today. हमेशा आप सुनते हैं, but tenses के लिए मेरी राय रहेगी कि आप सब थोड़ा जोड़ भी करें, आपके लिए benefit रहेगा, right? Coming on our topic of language, हर language को सीखने के सिर्फ 3 ही ways हैं. You can learn that language with your past tense, present, third भी बताइए students, future. Okay, very good. That we know that these were the 3 tenses, और शायद हम स्कूल्स वगैरह में सीखते भी आ रही है कि there are 3 types of tenses, past, present and future, right? Coming on our things, कि अगर हमें ये कहा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम सबसे ज्यादा बातें किसमें करते हैं, राइट? और अगर मैं बातों की बात बोलूं तो सबसे ज्यादा बातें जेंट्स करते हैं, लेडीज करते हैं? ओके, लेडीज एग्री कर रही है इस बात के लिए, वेरी गुड, कि लेडीज हम बातें करते हैं और उनको देख के जेंट्स भी बातें करते हैं. तो द थिंग इज दैट वी मोस्टली टॉक्स इन विच टेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी? वेरी गुड, वी टेल मोर इन पास्ट टेंस. हम लोग ज्यादातर बात किसमें पसंद करते हैं? पास्ट में. आप कभी भी नोटिस करना, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फोन और व्हाटएवर, आफ्टर 1 or 2 minutes यू स्टार्ट टॉकिंग विद पास्ट टेंस. आप लोग लग जाते हो कि हाँ भाई ये हुआ था, वो हुआ था. वी यूजुअली टॉक इन पास्ट टेंस, राइट? एंड द गोल्डन रूल ऑफ पास्ट टेंस इज वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नथिंग एल्स. हम लोगों को क्या करना है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म. और इट्स वेरी इजी आल्सो, राइट? पर हम लोग ये देखते हैं क्या इससे हमें इंग्लिश आती है? तो अगर हम एक छोटी सी लास्ट लाइन लेते हैं कि कल मैंने एप्पल खाया था, एग्जाम्पल. और अगर मैं बोलूं खाया था कर देते अपने, अगर मैं यहां पर बोलूं कि इस कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम सब जानते हैं कि कल क्या होता है? यस्टरडे, है ना? हम सब जानते हैं कि इसको यस्टरडे बोलते हैं. वी ऑल नो, और ये इजी भी है, सब जने इसे जानते भी हैं. और अगर मैं बोलूं मैं क्या होता है? मैं, वी ऑल नो, है ना भाई? मैं मींस आई. और एप्पल की इंग्लिश, क्या एप्पल खुद इंग्लिश है? ओके, विल यूज एप्पल. बट स्टूडेंट्स, यहां पे जो वर्ब है वो हमारे पास 4 ऑप्शंस है.
We can use here eat. We can use here ate. We can use here eaten, or we can use here eating. This is a fourth form, eating. See, these three forms, eat, ate and eaten, which makes us complications in the tenses. What happens? हमें ये पता है, हमें ये पता है, इवन हमें ये भी पता है, और अगर मैं कोई भी चीज मांगू दुनिया से, आपको बोलूं कि ये क्या है, तो आप सब जानते हो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, सेल्फी स्टिक, और ये क्या चीज है, फिर हमें इंग्लिश क्यों नहीं आती? हम हर शब्द इंग्लिश का जानते हैं, even then why we are not able to speak in English? The reason is only one, these verbs. क्योंकि हिंदी में तो हमने सिर्फ इतना बोलना है खाना या खाया, but in English we have three options. You have to say eat, ate and eaten. Even the fourth option is available, that is eating, which depends on the type of tense. तो हम लोग उसके अंदर एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स. उससे पहले मेरे ख्याल से I have told you everything, all the basics of English. Now coming on our topic, अगर हम बोलें कि अगर हमें पास्ट को पहले सीखना है, और हमने रीजन ले लिया कि पास्ट में लोग ज्यादा बातें करते हैं. Even science also states that 75% we are living all our life in past tense, and hardly we are giving 15% to present and 10% to future. So why don't we gain this 75% in our own life also? We should. So coming on our topic is the past tense has four parts, and number one is simple. Simple is consist of, whenever we want simple, we will see the following formula. या था, ये थे, ये थी. Moreover, आ था, ए थे, और ई थी. Right? These were the lines. Agree with me? अगर मैं बोलूं वह बहुत जिद्दी था, वह बहुत जिद्दी था. जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट्स? Stubborn. क्या वर्ड है? Stubborn. हम साथ साथ अगर वोकैब करें तो इसका वर्ड क्या होता है? Stubborn. और अगर आपको एक नया वर्ड और लिखाऊं तो इसको obstinate भी बोलते हैं. Obstinate. There is a simple word for this word, stubborn, obstinate, even you can say rigid. These are the few words of jiddi person, jiddi personality. And you must be knowing the simple words like कंजूस also. हम लोगों ने miser सुना होगा स्टूडेंट्स, right? So we'll soon be giving you a new word also regarding miser, and you will be get shocked कि सर ये word भी होता है, कितना अच्छा लगेगा, right? Moreover, अगर हम ये बोलें कि अगर miser का हमें इंग्लिश पता है, miser वर्ड हमें पता है कि कंजूस है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अधिक खर्चीला. कोई मुझे बता सकता है इसका इंग्लिश? Very good. Ritu madam has given answer. Its meaning is extravagant. Or another word is spendthrift. Very good. Spendthrift. T-H-R-I-F-T. New word, dynamic word. You should use it. Then miser is okay to use, but here we have extravagant. Here we have spendthrift person. Yes, we can use such dynamic words. तो अगर हम यहाँ पर अगर कुछ वर्ड लें कि हमने देखा सिंपल पास्ट हमें कन्वर्ट करना है, या था, ये थे, ये थी में, तो अगर हम बोलें कि कल मैंने दोपहर का आराम किया था. देखो लाइन देखो स्टूडेंट्स, कल मैंने दोपहर का आराम किया था. लास्ट में देखो क्या आया, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूं. कल मैंने दोपहर का आराम किया था. अच्छा, दोपहर का आराम एक पर्टिकुलर वर्ड है स्टूडेंट्स. इट मीन्स सियास्ता. क्या वर्ड मिलता है? सियास्ता. तो अगर हम बोलेंगे यहां पर आई टुक सियास्ता, क्या वर्ड यूज होगा? आई टुक सियास्ता. तो हमने नोटिस किया कि हमने अगर पास्ट का सिंपल सीखना है तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म. वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस. नाउ कमिंग ऑन बैक, टेक का क्या बन गया? टेक की तीन फॉर्म्स है स्टूडेंट्स, टेक, टुक और टेकन. देयर इज वेरी सिंपल थिंग, सो यू यूज इट. मैंने कल धूप सेकी थी. दोपहर में इन विंटर्स हम लोग कीनू लेके बैठ जाते हैं, राइट? और ग्राउंडनट्स भी लेके बैठते हैं. और भी कुछ खाते हैं दोपहर में? सर्दियों की बात बता रहा हूं मैं आपको. कैरेट, राइट? और बहुत अच्छा लगता है पड़ोसियों के साथ साथ थोड़ी सी बैक बाइट भी करते रहते हैं ना, तो मजा आता है, चुगली करते हैं हम, तो अच्छा लगता है. हाँ भाई, इसका वो हो रहा है, इसके वो हो रहा है. तो उस वर्ड को पर्टिकुलर क्या बोलेंगे हम जब हम दोपहर में धूप सेकेंगे? We'll use the word bask. Very good, madam.
Mamta madam has given answer that it means bask. तो yesterday I basked. It means आपने क्या सीखी थी स्टूडेंट्स? आपने धूप सेकी थी. तो आपने क्या वर्ड यूज किया? और शायद चुगली करने का तो आपने वर्ड सुना ही होगा स्टूडेंट्स. बैक बाइट, है ना? आपको नया वर्ड देते हैं. चुगली करने वाले को क्या कहेंगे? बैक सीट ड्राइवर. नया वर्ड लिख लो. There is good word in your dictionary from today onwards. That is back seat driver. Got it? कल मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था. Can anybody tell me? English of प्रसाद we will use oblations. क्या वर्ड यूज होगा? Oblations. We will use the word oblations. चढ़ाने को स्टूडेंट बेस्टो कहते हैं. BESTOW. तो आपकी जो लाइन बनेगी कि कल मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था, तो आई bestowed oblations in the temple. तो आपने क्या वर्ड यूज किया? आई bestowed oblations in the temple. तो आपने सीखा कि bestowed वर्ड यूज होता है किसके लिए? प्रसाद के लिए. प्रसाद को एक वर्ड और बोलते हैं बच्चों, दैट इज प्रेयर डिश. आप लोग लिख लीजिए. इवन पार्डन हाँ मैडम, प्रसाद चढ़ाना, अर्पित करना. बिल्कुल बिल्कुल, इट मींस अर्पित करना, नो डाउट. तो यू कैन यूज हियर. और मंदिर में जब आप जाओगे स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा ये भी करोगे कि मंदिर में जब आप जाओगे तो आप प्रसाद तो चढ़ाओगे, आप धूप भी लगाओगे. तो इसको बोलेंगे पेड ऑबियंस. पेड, OBEISANCE. You'll use yesterday I paid audience in the temple, right? We visited yesterday शनि टेम्पल. तो हमने शनि मंदिर में जाके क्या किया? हमने वहां पे धूप लगाई. तो पे का क्या बन गया स्टूडेंट? सेकंड फॉर्म पेड. पेड होता है, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑबियंस. ऑबियंस का मतलब धोख लगाना, धोख. तो यू यूज ऑबियंस. इसमें एस साइलेंट रहता है. व्हाट? सबको वर्ड्स क्लियर है? वेरी गुड. कमिंग ऑन ओवर मोर डायनेमिक वर्ड्स. हम अगर 3 वर्ड्स को पकड़े अपनी लाइफ के अंदर, तो हम लोग अपनी वोकैब को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. एडॉप्ट वर्ड आप सबने सुना होगा. इसी से रिलेटेड 3 वर्ड बन जाते हैं, एडॉप्ट, एडप्ट और फिर से एडप्ट. आप स्पेलिंग में डिफरेंस देखो. इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें ई है. एडॉप्ट, एडप्ट, एडप्ट. दिस मींस अपनाना, गोद लेना. और गोद अकेले को क्या कहेंगे? लैप. अकेली गोद को क्या बोलेंगे? लैप. मगर गोद लेना क्या होगा? एडॉप्ट. अपनाना क्या होगा? एडॉप्ट. एडप्ट, अनुकूल, एडेप्टेबल माहौल है. अभी हमारा जो माहौल है एडेप्टेबल है. इतनी गर्मी भी नहीं है, इतनी सर्दी भी नहीं. यू कैन से इट्स एन एडेप्टेबल एनवायरनमेंट. कमिंग ऑन अबाउट दिस एडेप्ट, वेयर ई इज देयर, इट मींस स्पेशलिस्ट. ई वाला जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ लिख सकते हो आप अगर आप लिखना चाहो तो. एडेप्ट, ADEPT, इट मींस विशेषज्ञ. इज इट कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग द वर्ड्स? पार्डन? एडेप्ट, अनुकूल. हाँ. Yesterday I was going with one word. हम लोगों को कॉलेज टाइम में बताया था कि बलि का बकरा एक वर्ड होता है, स्केप गोड बोलते हैं. स्केप गॉड, स्केप गॉड, SCAPE और GOAT, बलि का बकरा. तो हमें कॉलेज टाइम में वर्ड सिखाया जाता था. और हम अपने कॉलेज के लेक्चरर को कई बार हैंड-पैक्ड हस्बैंड बोल देते थे. कोई बता सकता है इसका मीनिंग? यहाँ पर जितनी भी मैरिड लेडीज है वो सब एक बार थोड़ी सी स्माइल करने वाली है. मैरिड कितने हैं यहाँ पर? जेंट्स में? हाँ मैरिड है ना. आप भी मैरिड हो? वेरी गुड. तो शायद आप लोग हंसने वाले हो. इसका मतलब है जोरू द गुलाम, राइट? तो आप लोग इस वर्ड को लिख लो. शायद कभी ना कभी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़े इस वर्ड को किसी और को या अपने आप को. ठीक है? बेटर टेक केयर ऑफ दिस वर्ड, इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर लाइफ. कमिंग ऑन अवर मोर डायनेमिक वर्ड्स, अगर हम चलते हैं हमारी वोकैब के अंदर, तो हमने नोटिस किया कि हमने सिंपल बहुत अच्छे से सीख लिया है कि हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. Coming on our important thing कि स्टूडेंट्स, कोई भी टेंस, whether it is past, whether it is present और whether it is future, हमेशा टेंस के पार्ट्स कितने होंगे? 4. चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो. तो हमने नोटिस किया कि सिंपल एक पार्ट है, दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूस है, तीसरा पार्ट परफेक्ट है और चौथा पार्ट परफेक्ट है. वेरी गुड. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट? अब हमने एक बात और नोटिस करी कि जब ये वर्ड्स हमारे सामने आए, 4 वर्ड्स,
सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने सिंपल जब पास्ट का सीख लिया तो क्यों ना हम सिंपल प्रेजेंट का भी सीखे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मेरे साथ रहना, आपको समझ आ जाएगा। लेट्स कम बैक टू अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक। So we'll go with the simple present। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो। इसको आप लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। हर टेंस की पहचान है स्टूडेंट्स, एग्री? दैट इज ता है, ते है, ती है। वी हैव 3 ऑप्शंस। वी कैन यूज ता है, ते है एंड ती है। These words we can easily use in our dictionary। वह पोएम सुनाती है। देखो स्टूडेंट्स लुक अप हियर, राइट? मैं सच बोलता हूं, ध्यान से देखना, मैं सच बोलता हूं। और आपने नोटिस किया मैंने यहां क्या किया, वह लगा दिया और पोएम लिख दी और सुनाती। एग्जाम्पल, हमने नोटिस किया कि दोनों में कुछ ना कुछ बताना है, राइट? यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, वर्ड सच, यहां पर क्या है, पोएम। सच को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, ट्रुथ, और पोएम तो पोएम ही है, खुद इंग्लिश वर्ड है। जब कभी हमें पोएम बतानी होती है तो हम वर्ड लगाएंगे रिसाइट। प्लीज हैव इट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, रिसाइट। और जब कभी हमें सच बोलना है हम वर्ड यूज करेंगे अटर। हमें चुटकुला सुनाना है हम बोलेंगे वर्ड क्रैक, राइट? तो डिफरेंट वोकैब फॉर डिफरेंट वर्ड्स। देयर इज अ स्पेशल वोकैब, स्पेशल वर्ब्स topic in our book also, 70 ways of spoken English. That's a very interesting topic which I have given in my book, and quite interesting part. Go through it. You will find a number of verbs for different points. So we know from today onwards कि सच के लिए हमें क्या बोलना है, अटर, और पोएम वगैरह सुनानी है तो रिसाइट। ठीक है? अब हम नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि वर्ड क्या कह रहा है। मैं सच बोलता हूं, वह पोएम सुनाती है। हमने दोनों में ता है, ते लगाया। ध्यान से देखो, इसका मतलब है तो हम सही जगह डायरेक्शन में, मगर ये जो है और ये जो है, इन दोनों में डिफरेंट फॉर्मूले हैं। कैसे है देखिए, इन सच कॉम्प्लिकेशंस वी हैव 2 formulas। One formula is subject V1 object। Second formula is subject V1 S or ES plus object। Why is it so? When such formula is there, only possible when the sentence starts with I, we, you, they and plural। And why such formula, where such formulas will come, subject, verb, SES and object, when the sentence starts with he, she, it, singular या किसी का नेम। तो हमने नोटिस किया कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है थोड़ा सा। रीजन बिहाइंड, इसमें 2 फॉर्मूलाज है, अलग अलग पॉइंट के अलग अलग फॉर्मूलाज है। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कब लगेगा, जब लाइन के अंदर क्या हो, I, we, you, they प्लूरल हो। और he, she, SES कब लगेगा, जब he, she, it हो। तो हम लोगों ने एक बात एग्री कर ली होगी कि ये A है और ये B है, और आपकी लाइन भी A और B से बनी है। ध्यान से देखो, मैं A वाला फॉर्मूला लगेगा, वह B वाला फॉर्मूला लगेगा। एग्री करते हो? चलो हम लोग अब देखते हैं। एक बात और कॉम्प्लिकेशंस में आ रही है, ध्यान से देखो। S और ES बोला मैंने आपको, इधर देखो S और ES। तो बात ये करती है कि सर S कहां लगेगा, ES कहां लगेगा। ये बात भी तो कॉम्प्लिकेशंस है। तो हमने एक बात अच्छे से सीखनी है कि जो ES वर्ड है ये तब लगेगा जब आपकी कोई भी वर्ब इससे खत्म होती है। X, CH, S, double S, O। एग्जाम्पल दूं आपको, देखो गो, गो में आप कभी S नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, गोस। क्यों? क्योंकि गो में लास्ट वर्ब क्या आ रही है, गो। तो हमने नोटिस किया कि कभी भी कोई भी वर्ब जो किससे खत्म होती हो, डबल एस से, एस से, एक्स, ओ और सी एच, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, ds। अदरवाइज अब एक वर्ड लो, ईट, EAT, लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, टी आ रहा है। इसको कोरिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहा। लाइन किससे शुरू है, ही, शी, इट से शुरू है। हम क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे, इट्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो हम इन दोनों की इंग्लिश करते हैं। कि हमने नोटिस किया कि मैं सच बोलता हूं और वो वह पोएम सुनाती है। शैल वी स्टार्ट? तो बताइए मुझे, मैं सच बोलता हूं,
I utter truth. And second one is Where poems are. very good. I utter truth. She recites She recites poem. Have you gone through this topic? Is it clear? Yes. इस टॉपिक के अंदर एक और पार्ट आता है स्टूडेंट्स, उसे लिखो वाई कंसेप्ट. There is one important point with this is why concept. उस why concept को देखो थोड़ा सा. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन हम दो वर्ब लेते हैं, प्ले और क्राई, प्रोवाइडेड दोनों शुरुआत ही शी से ही होनी चाहिए, तभी ये कंसेप्ट लगेगा. अदरवाइज तो सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. आपकी लाइन किससे शुरू होनी चाहिए? ही शी से. खत्म किससे होनी चाहिए? ता है ते ऐसे. इसके बीच में वर्ब जो है वो किससे खत्म होनी चाहिए? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. आपकी लाइन किससे शुरू होनी चाहिए? ही शी. खत्म किससे होनी चाहिए? ता है, ते है, ती है. उस दौरान आपकी जो वर्ब है वो किस अल्फाबेट से खत्म होनी चाहिए? वाई से. तब बात बनती है वाई कंसेप्ट की. तब हम सीखेंगे वाई कंसेप्ट. कब सीखेंगे? हमारी लाइन की शुरुआत हो ही शी से, हमारी लाइन का एंड होता है ते से, और हमारे जो वर्ब हो वो किस में हो? वाई में. तब हम ये बात सीखेंगे कि हम दो वर्ब उठाते हैं, सीख लेंगे. आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये प्ले है, ये क्राई है. इस वाई से पहले जो ए है वो वॉवल है, ए या यू. एग्री करते हो मेरे साथ? तो जब कभी इस वाई से पहले क्या हो? वॉवल हो, तो आप हमेशा एस लगाओगे. प्ले का क्या बनेगा? प्लेस. और जब कभी इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ध्यान से देखो, एग्री करते हो? कॉन्सोनेंट है, तब हम क्या करेंगे? तब हम वाई हटाकर तो क्या बन जाएगा वर्ड? क्राइज. और प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेस. ये वाई कंसेप्ट है. क्लियर है सब बच्चों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वंडरफुल. सो आई होप कि हमें ता है ते दिए वाला कंसेप्ट आ गया है. फिर भी मैं आपसे 2-3 लाइनें सुन लेता हूं. अगर आप में से कोई बता सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. शुड आई लिसन? ठीक है, देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं. रेडी? चलिए. वह मेरे सामने पेचीदा मसला लेकर आता है. ट्राई करो सिर्फ. मुझे वर्ब चाहिए, वर्ड नहीं चाहिए. जितना हो सकता उतना ट्राई करो. वह मेरे सामने पेचीदा मामला लेकर आता है. लाने को क्या कहेंगे? तो इतना तो बोलो, कम से कम पूरी लाइन तो बोलो. आई हेल्प यू, डोंट वरी. ही ब्रिंग्स. बस मुझे यही चाहिए था. वर्ड नहीं पता, पेचीदा कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेक्स्ड इशू. अगर हमें वोकैब नहीं आती मैटर नहीं करेगा, मगर अगर हमें वर्ब्स में प्रॉब्लम है, वेक्स्ड, WEVEXED, वेक्स्ड इशू. ही ब्रिंग्स वेक्स्ड इशू इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाटएवर. क्लियर? तो हमने एक वर्ड सीखा कि हमें वर्ड यूज करना है. कभी कॉम्प्लिकेटेड मैटर आइए तो हमें क्या वर्ड यूज करना है? वेक्स्ड इशू. राइट? चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सबसे, एग्री करते हो? रेडी ऑल ऑफ यू? उसे टर्मिनेशन लेटर मिलता है, क्या लाइन होगी? ही गेट्स. गेट का क्या बन जाएगा? गेट्स. टर्मिनेशन लेटर को एक नया वर्ड लिख लो स्टूडेंट, वॉकिंग पेपर. यूनिक वर्ड है, यूनिक वर्ड. आप अप्लाई किया करो इस वर्ड को, वॉकिंग पेपर. We'll use the word walking paper. वह कंजूस दिखता है. He seems, he looks, okay. He seems miser. आपको मैंने बताया था, मैं आपको वाइजर का एक बहुत अच्छा वर्ड बताने वाला हूं. चीज पेयरिंग पर्सन. राइट डाउन. चीज पेयरिंग, स्पेलिंग देख लेना भाई. चीज पेयरिंग पर्सन. चीज पेयरिंग पर्सन. इज इट क्लियर?
हम अपने बाल काटते हैं ना, बाल कटवाते हैं कुछ भी, तो ट्रिम वर्ड यूज किया करो, ट्रिम, TRIM। आप नाखून काटते हो, पेयर वर्ड यूज किया करो, सब्जी काटते हो, चॉप वर्ड यूज किया करो, और आप कोई और चीज तो कट। कट की फॉर्म सेम रहती है, कट कट कट, एग्री, इट्स इजी। तो हमने कुछ वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स देख लिए। अगर आप कहते हो तो मैं एक दो वर्ड्स और आपसे सुन सकता हूं, और विल सी कि आपसे लाइन बनती है क्या। स्टूडेंट ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं वह सिंदूर लगाती है, बताइए। She applies, not puts. She applies vermilion. Vermilion, क्या वर्ड यूज होगा? Vermilion. हाँ जी मैडम, आपके लिए बहुत काम का वर्ड है, और जब आप इसे इंग्लिश में बोलोगे तो इट वुड बी एन आइसिंग ऑन द केक ऑन योर पर्सनैलिटी। आइसिंग ऑन द केक क्या होता है बच्चों? सोने पे सुहागा, लिख लो, आइसिंग ऑन द केक। Yesterday, during Saturdays, I usually see movies. So there was, I was planning to see Akira, but unfortunately जो print था was not as per my choice. तो मुझे print बहुत अच्छा नहीं मिला, तो हमने कहा क्या करें, तो हमारे पास एक पुरानी फिल्म थी हाउसफुल 3, हमने कहा क्यों ना इसको देखा जाए। तो उसके अंदर हमें एक वर्ड मिला बहुत अच्छा, वो जो कुछ गर्ल्स है उसमें, वो बोलती अपने फादर को बोलती, जो बीत गया वो बीत गया। उसको इंग्लिश में बोला उस लेडी ने, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। इट्स अ यूनिक वर्ड। तो मैंने देखा यार ये भी काफी वर्ड सिखा देते हैं हम लोग। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, BYGONES, बाईगोन्स। और आई वाज वाचिंग वन मूवी ऑफ धर्मेंद्र, अपने, एक मूवी है ना अपने, उसमें भी एक वो वर्ड बोलता है, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, कम व्हाट में, यस, इसका मतलब है जो मर्जी हो जाए, अब चाहे कम व्हाट में, यूनिक वर्ड है, कम व्हाट में, धर्मेंद्र बोलते हैं ये वर्ड। तो हम लोग क्या कई बार इन वर्ड्स को पकड़ा करो, ये बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं। इनका मतलब होता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, धूम 2 आई थी क्या ऋतिक रोशन की? धूम 2 में था ऋतिक, हाँ, तो उसके अंदर जो बिपाशा बसु है, शायद थी ना, बिपाशा बसु थी, तो शी वही थी सेकंड में, हाँ, तो शी स्टेट्स, वो पुलिस में होती है शायद, तो वो कहती है ही डिस्गाइज अदर्स। एक वर्ड होता है डिस्गाइज, देखो इधर, डिस्गाइज, वो कहती है डिस्गाइज अदर्स। क्या होता है डिस्गाइज? छद्म वेश धारण करना। आपने देखा होगा हर सीन के अंदर ऋतिक ने एक नई ड्रेस पहनी होती है, एक नया लुक होता है उसका, तो मतलब कि बहरूपिया टाइप। क्या वर्ड यूज होता है उसके लिए? डिस्गाइज। और धर्मेंद्र, सनी देओल और ये बॉबी देओल, इनकी फिल्म आई थी जिसमें वो ठग होते हैं, हाँ तीनों ठग होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसीव करना, DECEIVE, या फिर बिट्रे, धोखा देना। तो ये वर्ड इन चीजों के लिए यूज होता है, डिसीवर, बिट्रे वर्ड्स, डिसीव, बिट्रे, दोनों का मतलब होता है धोखा देना। यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर वोकैब एंड यू कैन बिल्ड योर वोकैब एज शाइनिंग एज पॉसिबल। कमिंग ऑन अवर इशू, आई होप यू हैव लर्नड प्रेजेंट इंडेफिनिट। Have you learned the meanings? Present indefinite हम सबको अच्छे से ध्यान हो गया है, राइट? तो बस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले। उससे पहले मैं आपको 3 बातें बताया था स्टूडेंट्स। आई वाज जस्ट चैटिंग विद माय वाइफ एंड शी स्टेट्स दैट ये मेरे तिल है ना इसमें, तो मैंने कहा इसको ना कोई वर्ड बोलते हैं, फिर मैंने यूनिक वर्ड याद करने की कोशिश करी, फिर मैंने कहा शायद इसको मॉल बोलते हैं, तो आप लोगों को काम आ सकता है ये वर्ड, दैट इज द वर्ड मॉल। और जो मस्त है वो क्या बोलते हैं उससे स्टूडेंट्स? व्हाट। क्या वर्ड यूज होता है? व्हाट। और जो तिल है वो ये, खाने वाले भी एक तिल होते हैं स्टूडेंट्स, उसे क्या कहेंगे? लिंसीड नहीं होता, लिंसीड कुछ और होता है, लिंसीड इज डिफरेंट थिंग, नॉट तिल, अलसी होता है, लिंसीड इज अलसी, हाँ वेरी गुड। तिल इज सिसेम, SESAME, सिसेम, नाइस वर्ड। You should know the 3 words, mole, what, sesame। ये खाने वाले तिल है, और जो आपका मॉल है वो आपका लकी चिन्ह है, जहां पर भी आपकी बॉडी में है, तो इट्स गुड साइन। कमिंग ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, हमने स्टूडेंट्स अभी तक सिंपल के दोनों पार्ट कर लिए। हमने प्रेजेंट भी सीख लिया और पास्ट भी सीख लिया। अब हम एक बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूस। क्या सीखने जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूस। ये वर्ड ही देखो,
आपको सिखा रहा है कुछ ना कुछ। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये, कंटिन्यूस। मैं कार चला रहा हूं, क्या वर्ड यूज होगा? ड्राइव। मैं बाइक चला रहा हूं, क्या वर्ड यूज होगा? राइड। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कंटिन्यूटी में कितने काम हो रहे हैं। मैं कुछ भी काम कर रहा हूं उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, रहा है। Got it? और अगर पास में होता तो रहा था, तो ये पास की कंटिन्यूटी होगी और ये प्रेजेंट की कंटिन्यूटी होगी। वेरी इजी टॉपिक, हार्डली 2 मिनट का टॉपिक है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे इस टॉपिक को। इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जो रहा था इज सब्जेक्ट, was verb की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सी इट्स वेरी इजी। मैं बोलता हूं अगर मैं कुछ अच्छे वर्ड्स इसमें यूज करूं तो मैं किशमिश खा रहा हूं। I'm eating first. इंग्लिश। I am eating first. आप लोगों ने वर्ड ये देखा है स्टूडेंट्स कि हम लोग किसी से भी किशमिश पूछेंगे ना, लोग वर्ड यूज करेंगे रेजिन। आप अपने माइंड में भी सोच के देखो, आपको वर्ड याद आएगा रेजिन, मगर एक्चुअली रेजिन बड़ी किशमिश है, मुनक्का है। हम जो किशमिश खाते हैं वी आर क्यूरेंट, CURRANT। दिस वर्ड इज मोर एक्यूरेट, सो यूटिलाइज दिस वर्ड इन योर डिक्शनरी एंड दिस इज मुनक्का, बड़ी किशमिश। दोनों सही है बट डिपेंड करता है कौन सी कहां यूज होगी। तो अगर मैं किशमिश खा रहा हूं तो आई के साथ क्या लग जाएगा? I'm eating, whatever that means. Got it? Coming on our next thing, your past. So you can use here, मैं ये काम कर रहा था। तो आप कोई भी वर्ड अच्छा यूज कर सकते हो कि मैं कार चला रहा था, तो क्या यूज हो जाएगा? I was driving a car. चलिए फिर मैं आपसे कुछ वर्ड सुनूं, आप रेडी हो? Shall I listen? ठीक है, I have brought some words to develop your vocab. Get ready. Anybody can tell. वह आवारा की तरह घूम रहा है। Wandering. He is wandering. He is wandering. Wander तो हम भी कर सकते हैं, तो आपको आवारा की तरह भी कुछ वर्ड यूज करना पड़ेगा। He is wandering like vagabonds. 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 VAGA, vagabonds. He is wandering like vagabonds. Is it easy? BUNDS, VAGA, vagabonds. बहुत ही जल्दी हम पक्के दोस्त बनने वाले हैं। लाइन बोलिए प्लीज। वेरी सून वी आर गोइंग, बोलिए। वेरी सून वी आर गोइंग टू बी ए chum friend, chum, CHUM। और अगर कोई कहे सर लंगोटिया यार, तो उसके लिए वर्ड है, लंगोटिया यार के लिए चम फ्रेंड, और जो पक्के दोस्त के लिए है बोसम वर्ड यूज करो उसके लिए, बोसम फ्रेंड, बोसम एंड चम। वैसे तो दोनों सही है, दोनों यूज हो जाते हैं, मगर जो लंगोटिया यार है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? चम। और जो पक्का दोस्त है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? बोसम फ्रेंड। तो हमने नोटिस किए कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि वह घिसा पिटा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन एनीबॉडी टेल मी द इंग्लिश? ही इज आस्किंग, मैंने घिसा पिटा वर्ड एक बैच के अंदर बताया था, आप लोग बोल रहे हो स्टीरियोटाइप। क्या वर्ड है? स्टीरियोटाइप। तो वह घिसा पिटा क्वेश्चन, घिसा पिटा वर्ड, अगर कभी कोई भी बात हो जिसके अंदर आप बोला यार घिसा पिटा वर्क है, इट्स ए स्टीरियोटाइप वर्क, यार घिसा पिटा क्वेश्चन है, इट्स ए स्टीरियोटाइप क्वेश्चन। So you should use this word and you can build your vocab as much you can. There are abundance of vocab. I hope you are well versed with this topic. Was verb. अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूं, वह पाप और पुण्य की बातें कर रहे हैं। He's talking about sin and डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक वर्ड। जो पाप है वो सिन है, सिन है, ये बात सबको पता है। बट डू वी नो द मीनिंग ऑफ पुण्य? तो मुझे ये बताइए, हु मेड इंग्लिश? अंग्रेजी बनाई किसने? पीपल नहीं, अंग्रेजों ने। नो डाउट वो पीपल ही थे, मगर अंग्रेजों ने बनाई।
और मुझे अगला क्वेश्चन बताइए कि अंग्रेजों ने पुण्य किए क्या? अंग्रेजों ने पुण्य नहीं किए, तो पुण्य का वर्ड कहां से बना के लाएंगे? इसीलिए आप डिक्शनरी में क्या, यहाँ की क्लास में अगर मैं किसी को पूछूं जिसको मैंने ना बताया हो, तो अगर मैं उससे बताऊं कि पुण्य की इंग्लिश क्या आएगी, तो अननोन पर्सन को कभी भी नहीं पता होगा, उसकी इंग्लिश होती है मैरिट। अगर आप में से कोई यहाँ पर बता भी रहा है तो वो इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने उसे बताया, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपने घर के किसी भी मेंबर से और इवन योर फ्रेंड्स आप पूछना व्हाट इज इंग्लिश ऑफ पुण्य, उन्हें इंग्लिश नहीं आएगी। कई लोग वर्च्यू बताएंगे जो कि गलत होता है, क्योंकि वर्च्यू गुण और क्वालिटीज होता है। एग्जैक्ट जो वर्ड है वो मैरिट है, वो हर किसी को नहीं पता होता। इवन लोगों को ये भी नहीं पता होता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साथ निभाना। अगर यहाँ पे भी कोई मुझे बताएगा तो वो इसलिए बताएगा क्योंकि मैं उसे बताया। मगर अगर मैं पूछूं, अगर आप अपने किसी भी पर्सन से पूछो जाकर, अब हम सब डिस्पर्स होंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे, आपने घर पे जाकर चेक कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में चेक करना, यार साथ निभाने को क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार साथ निभाना वर्ड तो बड़ा कॉमन है, हम दिन में 2-3 बार यूज कर लेते हैं, मगर इसकी इंग्लिश क्या है? नहीं आएगी आप लोगों को। और यहां पर भी अगर कोई बता रहा है वो इसलिए बिकॉज आई हैव स्टेटेड देम, इट मींस स्टैंड बाय, साथ निभाना। यू वॉन्ट गेट दिस वर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इजीली, आपको मिल जाएगा। गूगल आपका ब्रदर सिस्टर, आपकी वाइफ भी है, आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकती है। मगर सबसे बढ़िया जो चीज है वो यही है कि हम जितना खुद मगर अपने माइंड के अंदर रखें, दैट्स मोर बेटर। सो यू शुड यूज फॉर पुण्य दिस वर्ड नोबडी नोस एंड स्टैंड बाय। इवन अगर मैं उस 4 की टीम से पूछूं कि मजबूरी की इंग्लिश क्या होती है, तो जल्दी से उनको नहीं आएगा। इंजीनियर, हाँ, हार्डवर्क, मजबूरी, 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 रायसीनगर, मजबूरी। और मेरे ख्याल से ये वो वर्ड है जो आप दिन में 1-2 बार यूज कर लेते हो, यार ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी, राइट? मगर उसकी इंग्लिश क्या होती है? इट्स इंग्लिश इज हेल्पलेसनेस, राइट ऑन फास्ट। इंग्लिश इज हेल्पलेसनेस। सो नो डाउट इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ नई वोकैब इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, so you can learn so many things. Coming on back on our tenses, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट टेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर इंटरेस्टिंग, नो डाउट। तो लेट्स सी कि हम लोग परफेक्ट टेंस हमें क्या सिखा के जाते हैं, राइट? दिस परफेक्ट टेंस इज अगेन इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। आप देखो, you just completed some work, just आपने अभी भी कोई काम किया। एग्जांपल में बोलूं, आपने कंटिन्यूअस टेंस सीख लिए क्या? हाँ जी सर, हमने सीख लिए, राइट? तो आपने क्या बोले? हमने ये सीख लिया, राइट? जो काम अभी भी वो और कंप्लीट हुआ, दैट इज योर परफेक्ट, बट प्रोवाइडेड द वर्क शुड बी कंप्लीट। आप पीटी क्लासेस पर आए, आपने घर पे फोन लगाया, हेलो मैं पहुंच गया हूं, क्या ये परफेक्ट है काम, क्योंकि आप यहां पर पहुंच गए हो। मगर इस लाइन के ध्यान से देखो, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, या हूं आएगा या हो आएगा, मैं पहुंच गया हूं, है ना? तो आपने नोटिस किया कि अगर ये है आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या? ये प्रेजेंट है, ये श्योर, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कंप्लीट और जस्ट अभी अभी। जब कभी ऐसा काम हो तब हमेशा वो परफेक्ट ही होगा। एक्चुअली जो बुक्स बताती है वो क्या बताती है हमें कि कभी भी लाइन के आखिर में क्या हो, चुका है, चुके हैं, चुकी है, कभी भी ऐसा हो तो ये परफेक्ट है। मगर एक्चुअली में बुक्स से एक्यूरेसी नहीं आएगी। उसका रीजन जानना चाहते हो तो ध्यान से मेरी 2 लाइनें सुनो। मैं नहा लिया हूं, मैं नहा चुका हूं, क्या डिफरेंस है? इंजीनियर, हाँ जी, इट्स सेम। अब हमने देखा कि चुका हूं तो चलो ठीक है, किताब के हिसाब से हमने सीख लिया, मगर अगर वर्ड आ गया मैं नहा लिया हूं, तो लिया हूं तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो चुका सीखा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। मगर हमें क्या देखना चाहिए? इसके अंदर इमोशंस, इसके अंदर भाव देखने चाहिए, क्या क्या है। देखो उसने काम पूरा कर लिया, ध्यान से देखो, और कहा है दिया तो है नहीं, लिया है, काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब काम किस में है? काम है परफेक्ट में। इस तरीके की बात के अंदर हम हमेशा जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड वील नोटिस कि हमने ये सब करने के बाद हैज और हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की
थर्ड फॉर्म. तो लेट्स कम बैक कि हैव किस किस के साथ लगेगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल. और हैज किस किस के साथ लगेगा? ही, शी, इट, सिंगुलर और किसी का नेम हो. तो ऑल दिस थिंग्स कोरिलेट्स दैट वी हैव टू यूज द which form of the verb? Third form of the verb. Shall I ask some questions? Are you all ready? चलिए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग जवाब दीजिए. मेरे मित्र ने मुझे बहुत से संस्कार सिखा दिए. मेरे मित्र ने मुझे बहुत से संस्कार सिखा दिए. संस्कार होते हैं सैक्रामेंट्स. क्या वर्ड यूज होगा? सैक्रामेंट्स. इधर देखिए SACRA, sacraments. The word is sacraments, which correlates. It means what? संस्कार. Right? Many people are asking me कि सर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम 7th डे क्यों रखा? तो मैं उनको बोलता हूं कई बार वो 7 डे समझ जाते, तो उनको कहता हूं 7 डे नहीं है, इट्स 7th डे. 7वां है, 7 नहीं है. तो वो कहते सर इसका रीजन. मैंने कहा इट्स रीजन इज दैट 7 इज मतलब मोस्ट डायनेमिक वर्ड ऑफ अल्फाबेट, दिस न्यूमेरिकल in the world history. Reason behind that is only one. This 7 is, हिंदी में बोलूंगा तो परम पावन और इंग्लिश में बोलूंगा तो sacrosanct. क्या कहलाएगा? sacrosanct वर्ड है ये. sacrosanct का मीनिंग है SACRO स्पेलिंग SANCT, sacrosanct. ये इसे बोलते हैं परम पावन. यानी कि आपने सप्तऋषि सुना है, 7 समुद्र सुना है. इवन हम जो मंदिर में फेरे लेते हैं, कितने लेते हैं स्टूडेंट्स? मंदिर में नहीं, मैरिज में 4 लेते हैं. आप तो मैरिड हो. और कहा कितना जाता है? 7 कहा जाता है. रीजन इज दिस ओनली कि 7 जो वर्ड है वो परम पावन है. और इस वर्ड को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा, जाना, और मुझे लगा कि मेरे को अपने इंस्टीट्यूट का नाम ये रखना चाहिए क्योंकि मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और लकी रहेगा और हैवी, नो प्रॉब्लम. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी गुड वर्ड. तो ये वर्ड जो है ये आपको ही पता होना चाहिए कि सैक्रोसैंक्ट का मीनिंग है परम पावन. फिलहाल हम चल रहे हैं संस्कार पे. और मेरी लाइन क्या थी स्टूडेंट्स? My friends has taught sacraments. वेरी गुड. माई फ्रेंड हैज, सिंगुलर है मैडम. फ्रेंड, मेरे मित्र ने मुझे, तो माई फ्रेंड हैज हो जाएगा ना, फ्रेंड्स नहीं होगा. माई फ्रेंड हैज टॉट मी सैक्रामेंट्स. इजी वर्ड. आर वी ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन के लिए रेडी हो आप लोग? चलिए सुनाइए फिर. वह अकबर का वंशज बन चुका है. आप कहोगे सर स्पेलिंग बताओ. मगर प्रनाउंस गलत कर रहे हो. इट्स वर्ड इज स्कियन, SCION. जैसे एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है एनक्लेव, इसका मतलब है हवेली. क्या मीनिंग है? हवेली. तो आप लोग ये वर्ड भी याद कर लो, आपकी वोकैबुलरी के अंदर एडिशनल हो जाएगा. और ये जो स्कियन है इसका मीनिंग है वंशज. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि वह अकबर का वंशज बन चुका है. ही हैज बिकम, राइट? स्कियन ऑफ अकबर. बिकम होगा मैडम, थर्ड फॉर्म लगी ना. बिकम, बिकेम, बिकम होता है. तो विल यूज बिकम. कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, भारी वर्षा हो चुकी है. ट्राई योर बेस्ट, कम ऑन बॉयज. Here girls are more intelligent than you. It has parking. Raining नहीं होगा. It has rained. हाँ. Cats and dogs. भारी वर्षा को क्या बोलेंगे? Raining cats and dogs. तो आप ध्यान दो कि heavily raining तो बोलना ही है, no problem. बट एक नया वर्ड है, वो क्या है? Raining cats and dogs. और अगर बूंदा बूंदी हो रही है तो आप वर्ड यूज करोगे ड्रिजलिंग. तो नोटिस इट, दिस टू वर्ड्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो हमने देखा कि एक अच्छा वर्ड हमने फिर से सीख लिया है. तो लाइन क्या थी हमारी? हाँ जी. इट हैज रेन्ड. हाँ ऑब्वियस है. इट हैज रेन्ड. वे मेरे रिश्तेदार बन चुके हैं. क्यों मैडम? हैज लगेगा.
वे मैडम दे लुक अप हियर, दे और बोलिए, दे हैव बिकम माय किथ एंड किन, नया वर्ड लिखो, किथ एंड किन. व्हाई गो फॉर ओल्ड? किथ एंड किन means relatives, and in this batch I can say here my girls and ladies are more intelligent than my boys. Boys आप लोग इंटेलिजेंट बन जाओ, वरना ये बुश ने किसी टाइम में कहा था, बुश has stated in America to Americans, boys and these students, that better get intelligent in maths, otherwise Chinese and Indians will defeat you. तो वही मैं आप सबको कह रहा हूँ कि better get intelligent in English, otherwise ladies will defeat you. होगा ऐसा कि आप घर में पास्ता बनाते मिलोगे और आपकी जो वाइफ है वो काम करते बढ़िया जॉब करेगी, ठीक है, और आप टिफिन पैक करते मिलोगे. तो ज्यादा अच्छा आप कुछ अच्छे से डायनेमिक पर्सनालिटी बन जाओ अभी. किथ एंड किन. चलिए हमने स्टूडेंट्स एक पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया, दैट इज परफेक्शन. अगर आप कहते हैं तो मैं एक दो वर्ड वोकैब के आपके साथ और डिस्कस करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं. पर एक दो वर्ड और अगर लिखना चाहें तो आप अपनी पर्सनालिटी के लिए ना हमेशा वर्सेटाइल वर्ड यूज किया करो. डायनेमिक वर्ड. यू शुड यूज आई एम अ वर्सेटाइल पर्सन. सर क्या वर्ड है? वर्सेटाइल. अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट करने वाला. लिख लो वर्सेटाइल. इट्स अ नाइस वर्ड. जो अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर ले वो व्यक्ति कौन है? वर्सेटाइल. सो यूज दिस वर्ड इन योर डिक्शनरी. इवन यू कैन से आई एम अ जोवियल पर्सन. आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे चुटकुले बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो उनका मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ? जोवियल पर्सन. दैट्स नाइस thing. And if we say sir versatile has jovial है, millions are amiable word, you should use I'm an amiable personality. ये I'm an amiable personality. amicable भी होता है, amiable भी होता है, तो you can word use this word, this more better, that is amiable. I'm an amiable personality. It looks good with your personality. मिलन साहब एफेबल भी लिख सकते हो, AFFALE. एफेबल पर्सनालिटी. I'm an affable personality. स्टूडेंट्स मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, दो एक प्रोफेशन के अंदर दो लोग काम करते होते हैं. एग्जांपल, मैंने अपना करियर रतन टाटा की कंपनी से शुरू किया था, रैलीज इंडिया. तो मेरे वर्क के दौरान और भी तो कोई कलीग होगा मेरा, तो हम एक दूसरे को ना ब्रिदल्स वर्ड यूज करते थे. आपके काम आएगा ये वर्ड, ब्रिदल्स. आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ब्रदर्स का प्लूरल है ये, मगर जो ब्रदर खून का रिश्ता है वो नहीं होता, उसमें हम ब्रदर्स लगाए थे खून के रिश्ते में. खून का रिश्ता ना हो और हम लोग जब दो प्रोफेशन के हो तो हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे? अच्छा वर्ड है, आपने वोकैब के अंदर यूज करो इसको, इट्स नाइस. और जब आप किसी से कंपेयर करो अपने आप को कि भाई मैं उस जैसा लगता हूं, या फिर मैं बोलूं कि ममता मैम और उनकी बेटी रचिता दोनों बहुत सुंदर है, पर रचिता मुझे ना बहुत ज्यादा ही क्यूट लगती है, तो मैंने यहां पर क्या किया, दोनों को जक्स्टापोज किया. नया वर्ड लिखो, जक्स्टापोज. JUXTA, जक्स्टापोज. तो वी फाइंड हियर गुड वर्ड कि आमने सामने रखकर कंपेयर करने को क्या बोलेंगे? जक्स्टापोज. बोल के देखो स्टूडेंट्स, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हुई है और यू विल कम टू नो अबाउट द न्यू डायनेमिक वर्ड्स. बिल्कुल जक्स्टापोज. हाँ, आमने सामने रख के कंपेयर करना मैडम. Students, now it's the time to learn in tenses one more interesting mode, that is रहा है and say dash dash रहा है. इसे पढ़ के दिखाएगा मुझे कोई? मैंने क्या लिखा है, आप पढ़िए, आप पढ़िए. रहा है and say ना, say dash dash. ये डैश मत भूलना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. मैंने इसीलिए इसे पढ़वाया ताकि हम क्या करते हैं, इस डैश को भूल जाते हैं. इस डैश को कभी मत भूलना, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, और अगर आपने इस डैश को याद रखा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे. स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस. क्या बोलेंगे इसे? कंटिन्यूस. और इसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस. तो यू सी, this is known as continuous, this is known as
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कमिंग ऑन अवर कॉन्टिन्यूस टेंस, हम बोलते हैं एक अच्छा सा वर्ड आपको मैं बोलूं, मैं कोई अच्छा वर्ड, कोई और अच्छा वर्ड आने दो। ओके, मैं सहतूत और गुलाब जामुन नहीं, मैं सहतूत और जामुन ले लेते हैं। मैं सहतूत और जामुन खा रहा हूं, क्या इंग्लिश होगी? आम ईटिंग, ओके, आम ईटिंग मलबरी एंड ब्लैकबेरी। क्या वर्ड यूज होता है? मलबरी एंड ब्लैकबेरी, राइट। और बेर को क्या कहते हैं? प्लम। और आलू बुखारे को क्या कहेंगे? बोकारो प्लम, BOKARO। हाँ मैडम बोल देते हैं, मगर जो एक्यूरेट है वो प्लम तो हो गया बेर, और जो आलू बुखारा हो क्या हो गया? तो अगर मैंने बोला मैं सहतूत खा रहा हूं और जामुन खा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड, आम ईटिंग, आम ईटिंग, इजी है। मगर आप यहां देखो, यहां मुझे क्या लगाना है? से भी लगाना है, डैश डैश भी लगाना है, और रहा भी लगाना है। और ये से किसको शो करेगा? हमेशा टाइम को। जब कभी ये से टाइम को शो करे, उस दौरान हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें समय देना पड़ेगा। तो हमने लाइन देखी, मैं यहां पर क्या बोला? सहतूत खा रहा हूं, मगर यहां पर मैंने क्या कहा? मैं 2 बजे से सहतूत खा रहा हूं, मैं सुबह से सहतूत खा रहा हूं, मैं कल से सहतूत खा रहा हूं, मैं आज से, कुछ भी आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू यूज समथिंग। तो हमने नोटिस किया, अगर मैं बोलूं कि मैं 8 बजे से 8 o'clock बजे से सहतूत खा रहा हूं, 8:30 कर दे, मैं 8:30 से मलबरी खा रहा हूं, इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी आता है स्टूडेंट्स। एग्री करते हो? प्लीज डोंट टॉक, लुक अप हियर, और ऑल ऑफ यू विल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। अब बात आती है कि सर हमें हैज हैव आता है, हमें बीइंग भी आ गया, हमें सिंस और फोर समझा दीजिए आप। मैनी पीपल आर आस्किंग, इसलिए सिंस और फोर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। मैरिड बॉयज कितने हैं? मैरिड बॉयज, सरदार जी हाथ खड़ा कर लो यार। हाँ जी, ऐसे क्यों करते हो तुम? तुम्हारे मानते हो ना? हाँ जी, मैरिड हो आप? अपनी वाइफ को कहते हो कि यार तैयार हो जा, मार्केट चलते हैं, वो कहती 10 मिनट में हो रही हूं बस, और बताइए उसका 10 मिनट कितना होता है? बहुत बड़ा होता है ना? मगर आप भी हंस नहीं सकते, इसलिए नहीं हंस सकते क्योंकि जब आपकी वाइफ कहती है कहां जा रहे हो? आपके बाजार जा रहा हूं, कितनी देर में आए? 10 मिनट में आ रहा हूं, तो बराबर होते हैं। आपके जो 10 मिनट है, वो जो ये तैयार होने के 10 मिनट है, दोनों का टाइमिंग बराबर होता है। तो अब ये देखते हैं कि जब हमने बोला 10 मिनट, तो आपने लेंथ ली 10 मिनट्स, 10, 9, 8, 7, आपने लेंथ ली। जब कभी हम लेंथ लेंगे, हम लोग यूज करेंगे वर्ड 4, और जब हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड देंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे, तो सिंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, वी विल यूज पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने बोला 8 o'clock, ये फिक्स है, मगर आपने बोला 8 घंटे, फिक्स नहीं। 3 दिन, फिक्स नहीं। 1995 फिक्स है। तो आप नोटिस करो कि इसमें फिक्स क्या क्या है, आप मुझे बताना कि सिंस किसमें आएगा, फोर किसमें आएगा। कम ऑन स्टार्ट। मॉर्निंग, सिंस, राइट। 1995 10th November, 17th December, ओके। 2 o'clock, 5 PM, 5 PM, 5 hours, 2 weeks, yesterday, since, right? Few days, last few days, 4. Last month of the year, हाफ ऑफ हो गए ना? अब मेरी सुनो, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर फिक्स है, दिसंबर होता है दुनिया में। अब कभी बोलो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा आएगा? इनडायरेक्टली तो फिक्स है, तो क्या लगेगा? सेंस लगेगा। तो हम लोग एक नोटिस करते हैं
मैं 8:30 बजे से क्या खा रहे थे हम? ब्लैकबेरी खा रहे थे क्या? कुछ और खा लेना? ओके, नो प्रॉब्लम, आप कुछ और खा लीजिए। हम लोग शिमला मिर्च खा लेते हैं। हम लोग नहीं नया वर्ड देते हैं आपको, बेल पीपर, BELL, ये वर्ड नहीं सुना होगा आपने, बेल पीपर। कैप्सिकम इज कॉमन वर्ड। तो आप लोग देखिए, मैं 8:30 बजे से शिमला मिर्च खा रहा हूं। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। आई के तो हैव लगाऊं, हैज लगाऊं? आई हैव बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? बेल पेपर। सिंस लगाऊं, फॉर लगाऊं? सिंस, इट्स अ फिक्स टाइम। सिंस 8:30। क्या बोलेंगे 8:30 को? 8:15 को क्या बोलेंगे? 8:15। 7:45 को क्या बोलेंगे? 7:45। तो हम लोग ये टाइमिंग भी याद रखो, आपकी पर्सनैलिटी को फिर से मैं बोलूंगा, आइसिंग ऑन द केक कर देते हैं। 7:30 को 7:30, 7:15 को 7:15, 6:45 को 6:45। चलिए, आपको सेंटेंस दे थोड़े से बना के दिखाओगे? ठीक है, आप लोग पेन कॉपी मत तैयार रखना, बस अपना माइंड तैयार रखो और मुझे हाथ खड़े करके बता दीजिए सर मैं ये सेंटेंस बना सकता हूं। आर वी रेडी? वह उसका अता पता ढूंढ रहा है। नहीं, हाँ सिंपल पूछा मैंने, इसका कॉन्टिन्यूस पूछा है। वह उसका अता पता ढूंढ रहा है। क्यों मैडम, क्यों टाइम है ही नहीं, ये तो प्योर कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ही नहीं है। काय को है? ही इज सर्चिंग, इज या हर? हर लगा दो, आप खुश हो। ही इज सर्चिंग हर वेयर अबाउट्स। नया वर्ड है, लिखो। अते पते का मीनिंग क्या होता है? वेयर अबाउट्स। आपसे अगर मैंने यूनिक वर्ड पूछा तो कुछ तो रीजन होगा, तो यू यूज द वर्ड ही इज सर्चिंग हर वेयर अबाउट्स, अता पता। इजी? आप लोगों को याद हो गया स्टूडेंट्स? ओके। वह 1 घंटे से घूंघट में रह रही। सिर्फ घूंघट बता दें तो हो जाएगा, काम चल जाएगा ना, है ना? वेल, VEIL लिख लीजिए, वेल VEIL। हाँ, 1 घंटे से कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटा तो मतलब 4 लगेगा, क्या प्रॉब्लम है? शी हैज बीन इन वेल। क्या है? 4 हाँ 4 बनना, वेरी सिंपल। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्या तुम कई दिनों से गिल्ली डंडा खेल रहे हो? अब आपको कोई सर गिल्ली डंडा तो हमने खेला ही नहीं सर, बचपन में भी हमने, आजकल तो मोबाइल ही चलाई नए बच्चों ने। तो बताइए मुझे कि गिल्ली डंडा क्या है? टिप कैट, TIP, टिप कैट। क्या वर्ड है? शुड आई राइट? टिप कैट। अगर आप इनमें से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी लाइफ में पैलदूज खेला था? वेरी गुड। शायद ये नहीं, इनको पता नहीं पैलदूज क्या होता है, राइट? पैलदूज खेला था सारी का? श्योर? ओके, बहुत से गेम्स होते हैं पैलदूज में, शायद ऑपोजिट ही खेलना होता है कुछ ऐसा, राइट? हाँ, आप सबने पैलदूज खेला था। हॉप स्कॉच बोलते हैं इसको। हाँ, हॉप स्कॉच। तो आपके बहुत काम आ सकता है। और आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने मम्मी की लोरी ली है? मम्मी लोरी दो, सुनना है? नहीं सुनी? आजकल मदर्स के पास टाइम नहीं है, उनको व्हाट्सएप में बिजी रहती है। तो लोरी सुनने बोलते सिंग ललाबी, लिख सकते हो आप, LULLABY, LULLABY, टू सिंग ललाबी। ललाबी। स्टूडेंट, जितने भी वर्ड मैं आप सबको सिखा रहा हूं, आप लोगों को एक अच्छी न्यूज देता हूं कि जितने ही वर्ड मैं आप सबको सिखा रहा हूं, मैंने आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में डाल दिए। आप घर जाओगे, आप अपने ग्रुप्स को ऑन करोगे, आपको मिल जाएंगे। इजी है, आसान है। आप यहां पर भी लिख रहे हो, अच्छी बात है, समझ भी रहे हो, अच्छी बात है, पर आप लिखना मत छोड़ना, आप लिखिए, इट्स गुड। बट एट होम यू विल गेट ऑल दोस वर्ड्स। एक अच्छे कंप्लीट पेपर पे अच्छा सा कार्रवाई करके, इट्स ऑलरेडी रीच टू यू। तो आप जब घर जाओगे आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी दिस वोकैब्युलरीज, ओके? So it would be fruitful for all of you and you learn them by heart and we'll have a test very soon. तो आप सबको याद भी हो जाएगी।
तो लास्ट वर्ड ने क्या वर्ड यूज किया? लोरी सिंह ललाई। तो एक वर्ड सुनूं मैं आप लोगों से? चलिए मुझे बताइए फिर। वह 2 मिनट से गुदगुदी कर रहे हैं। टिकलिंग, क्या वर्ड यूज होता है? टिकलिंग, TICKLING, 2 मिनट से। हाँ बताइए, 4 लगेगा 2 लगेगा, सिंस क्या लगेगा? सिंस 2 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब आपको 4 लगेगा बेटा, 4 2 मिनट्स। हाँ नहीं 2 मिनट फिक्स नहीं मैडम, 2 मिनट्स इज वी विल यूज 4। स्टूडेंट्स गर्मियां बहुत थी, बहुत बच्चों को लू लग जाती थी। लू लगना क्यों? अब सबने अपने अपने मोबाइल खोल लिए। भाई मोबाइल अभी मत खोलो, आप लोगों को मिल गई, ऐसा मतलब ये नहीं है। आप मुझे बताइए लू लगने को क्या कहते हैं? सन स्ट्रोक, राइट नाउ। लू लगना, सन स्ट्रोक, क्या वर्ड यूज होगा? सन स्ट्रोक। ये वर्ड मिलता नहीं जल्दी से, आपके काम आएगा। और कई बार बोलते हैं अपने झुलसा देने वाली गर्मी, दैट इज स्कॉर्चिंग हीट, SCORCHING, स्कॉर्चिंग हीट। तो हमने नोटिस किया सन स्ट्रोक, हमने नोटिस किया स्कॉर्चिंग हीट। दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप भी वोकैब पे लो, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। कई बार हम बोलते हैं यार बहुत ज्यादा उमस सी हो रही है, कुछ और वर्ड। ये तो मैंने बताए हैं, मगर मैंने एक नहीं बताया, वो आज बता देता हूं। मगर मुझे बताइए, आप कोशिश कीजिए कि बहुत अंदर तो बिल्कुल हवा नहीं है, बहुत सफोकेशन है, क्या बोलेंगे? स्टफी इनसाइड, STUFFY, इट्स वेरी स्टफी इनसाइड टुडे। स्टफी इनसाइड क्या वर्ड है? स्टफी इनसाइड। You'll use this word, really very dynamic. Apply it in your personality and you should stuffy inside. बहुत उमस, बहुत गर्मी, बहुत वो हवा नहीं है, और जमा देने वाली ठंड, freezing cold, लिख लो। It's freezing cold today, means आज तो जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। और मौसम जब बहुत सुहावना तो क्या बोलोगे? The weather is very pleasant, right and fast. The weather is very pleasant. That is also a good word. You can use it in your vocab. तो आपको सारे वेदर्स बता दिए, बारिश हो तो भी बता दिया क्या होगा, राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कई बार कई बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जो नींद में बोलते हैं। बिल्कुल मत छुपाना, सच से बताना, कितने बच्चे बोलते हैं या बोलते थे या बच्चों में बोलते थे? लेकिन बोलते हैं कि आप बोलते थे। सारिका भी, अंशुल भी, वेरी नाइस। और बॉयज के अंदर कोई? बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बस बच्चे नहीं चाहते लेडीज के आगे हम अपनी पर्सनालिटी डाउन करें। अंशुल ने ऑलरेडी ईमानदारी से बता दिया सर, मैं। सारिका भी, ओके ओके, छोटी वाली, ओके ओके। मैम नो, ज्योति मैम, नॉट एट ऑल, ठीक है, लिटिल बिट बोलते थे लोग। हियर, हाँ, ओके, नॉट एट ऑल। बॉयज में सर थोड़ा ध्यान नहीं है, पर पहले बोलते थे, ठीक है। अब मम्मी, ओके, सो नाइस, सो नाइस। तो नींद में बोलना, सोमनीलॉकिस, सोमनीलॉकी, SOMNI, सोमनीलॉकी, QUY, सोमनीलॉकी। और बोलने वाला क्या कहलाएगा? सोमनीलॉकिस्ट। रितु पवार's daughter is a somnologist. Sarika is a somnologist. Anshul was a somnologist. She is not now a somnologist. So look up here. जो नींद में बोलता है उसको क्या बोलेंगे? somnologist. क्या कोई मुझे ये बता सकता है नींद में चलने को क्या कहेंगे? नींद में चलते भी तो है कई बच्चे। आप में से कोई चलता है? अब चलता होगा तो ही मुझे नहीं बताएगा सर, हम तो नहीं चलते, राइट? ठीक है। सोमना एम्बुलिज्म क्या वर्ड है? सोमना एम्बुलिज्म is what to be known as walking in night when you are in sleep. You will use this word somnambulism. It's a nice word. Somnambulism, नींद में चलना। तो हमने कुछ यूनिक वर्ड सीख लिए है कि सोमना एम्बुलिज्म, नींद में चलना, और सोमनीलॉकी क्या होता है? नींद में बोलना। इन वर्ड्स को आप अप्लाई कैसे करोगे? इट्स योर विश।
इफ यू आर वेल वर्स्ड आई शुड मूव फर्दर। और हम लोग एक यूनिक टेंस के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, हम लोग यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर। फ्यूचर का टेंस मैं स्टार्ट करूं, बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग स्टूडेंट। एक बहुत ही यूनिक बात बताऊं आपको। देयर वाज अ पर्सन एंड हिज एज वाज 47। You people are 20, 23s, 25s. वो जो पर्सन था उसकी एज थी 47. When he wake up in the morning, he found a newspaper and he was just about to read it. वो पढ़ने लगा, इतने में he found his own snap in the picture. जब उसने अपनी पिक देखी, he got shocked because just below the snap, this picture, it was written, "You are no more." भाई देवेंद्र अपनी स्नैप देखे और देवेंद्र बोले कि भाई आज पेपर पढ़ते हैं। पेपर में देवेंद्र की फोटो, हाँ देवेंद्र ने मेरी फोटो लगी, नीचे लिखा देवेंद्र जी नहीं रहे, तो देवेंद्र को कैसा लगेगा? शॉक होएगा। एग्री करते देवेंद्र? तो इट वाज रिसेंट देवेंद्र's बर्थडे आल्सो, है ना देवेंद्र अपना। तो कई बात ऐसी होती है कि अच्छी बात भी थी अभी रिसेंटली, तो उसमें पेपर में आया होगा। कांग्रेट्स हिम फॉर हिज बिलेटेड बर्थडे भाई, गिव अ बिग क्लैप फॉर हिम। तो हैप्पी बर्थडे टू यू and you must have reached my wishing also. आपको मिल गई होगी, very good. So when this Devendra see this paper, it was written Devendra is no more, he will definitely get shocked. तो उस person के साथ भी यही हुआ। It's a real story students. तो आप लोगों में से कोई ऐसा मत समझना कि ये real story नहीं है, ये एक real story है। तो when he found that this happened, he got shocked. अब shock तो वो हुआ, उसके साथ एक बात और हुई, उसने सबसे पहले उधर गया, he feared up. And he reached his family members and told them to touch me. When they touched him, he told his family members that, "Am I alive?" They said, "Yes, yes, you are alive." So he got happy, but now he got in anger also, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने तो गलती की थी। तो obvious है किसकी गलती आप समझ गए होंगे। तो he rang the publisher and he said, "Hello, how dare you write this? I am living, staying, I am alive. Why you killed me? You have killed me in papers." He said, "No, sir, sorry. Actually, वर्मा की जगह धिंगड़ा की जगह अरोड़ा की जगह शर्मा और हमें पता लगा आपने, और we made a mistake." वो कहता है यार चलो ठीक है, बड़ा आदमी था, कहता ठीक है, you made a mistake, let it be, or relieved him, forget, उसको माफ कर दिया। उसको माफ तो कर दिया उसने, but his instinct said that why shouldn't I read and see what people are saying for me, and he started reading it. Suddenly the newspaper publisher phone came. And he said, "Sir, one more mistake we did." वो कहता अब क्या किया तुमने? कहता सर, when we came to know that you are no more, we reached everybody's home in the evening and we told them that you are no more, and we wrote their words also what they stated for you. कहता अब मुझे गुस्सा आ रहा है, better cut the phone. Disconnect it. उसने काट दिया। अब उसका मन किया अंदर से instant, let me read. तो people के views थे अच्छे, अलग-अलग views होते हैं ना, कोई मर जाता है तो views होते हैं obituaries के अंदर। तो in the there some words were there and people were writing. One person has said, see what he said, you will be shocked. उसमें लिखा था monster died. इसका मतलब होता है राक्षस मारा गया। ऐसा नहीं एक ने लिखा, दूसरे ने लिखा bloodsucker died, तीसरे ने लिखा devil died। हर इंसान ने बुरा 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 बहुत बुरा कहा उसको बहुत दुख हुआ कि यार when in real my life I'll go, people will say me like this. It's very bad for me. और his age was 47. उसकी एज कहां तक आ गई थी? 47. उस एज के अंदर उस पर्सन को ये सुनने को मिला, रीजन वाज ही वाज अ साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और ही इन्वेंटेड डायनामाइट बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। आज देखो वैष्णो देवी का रास्ता कितना आसान हो गया, मैनी गोल्ड माइंस, कोल माइंस, ये सब किसके द्वारा निकाली जाती है? इसके द्वारा ही माउंटेन्स तोड़े जाते हैं, लोग थोड़ी ना तोड़ेंगे उन्हें जाके। डायनामाइट्स आर इंपॉर्टेंट, बट टेररिस्ट मिसयूज इट, टेररिस्ट ने उसका मिसयूज किया और लोगों के ऊपर फेंकना शुरू किया। अब कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी, he was in crime because he has given the formula, तो कहीं ना कहीं गलती उसकी थी, मगर उसे दुख हुआ इस बात का कि मैंने ऐसी चीज दुनिया में बना दी। 47 इयर्स की एज के अंदर उसने ओथ ली, वो खड़ा हुआ और उसने बहुत अच्छी ओथ ली, एंड ही स्टेटेड कि when in real life I will go from here, जब इन रियल लाइफ मैं सच में यहां से जाऊंगा, एटलीस्ट मैं दुनिया को ये नहीं कहने दूंगा
कि मैं एक मॉन्स्टर हूं, ब्लड सकर हूं, मैं कुछ यूनिक जरूर कर गया. And he started working for peace. And as I am saying you, it's a real story, so listen nicely. What happened? Now you must be knowing the award which is being given for the peace. Can you name that award? Peace के लिए जो award मिलता है. Very good. Nobel Prize. You will be shocked all that the prize which is being given today as a Nobel Prize, the money comes from his own institution, and the name of the person was Alfred Nobel. बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल वो पर्सन है who invented dynamite, मगर ये सब लोग जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल was a person जिसकी वजह से ये नोबेल प्राइज बना है, ये अवार्ड आता है, और इसका जो अमाउंट है वो इसकी संस्था से आता है. तो देखो he changed the world. तो वही हमारी लाइफ में होना चाहिए. If we think we are old as per our age of learning, there is no age of learning. One senior lady has come to me. She is the owner of DL School. And she has come to me in the age of 60s, and she stated कि सर मुझे इंग्लिश करनी है. And she was studying like you people. She was enjoying. उसने कभी लगने नहीं दिया कि मैं बड़ी हूँ. वो बहुत अच्छा कर गई. उसके बाद उनकी डॉटर भी करके गई. Now she is in BDS, योगिता शर्मा, but she is very dynamic. Dr. Tatia's wife, she was about 60 when she reached me. She conveyed me, sir क्या प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया बात है ना, मैं अगर बच्चों के साथ सीखूं, मैं खुद बच्चा बनूंगी. There were many senior ladies, senior gents who have done. एक अंकल थे, he was above 70 and he stated me, sir मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमरजीत सिंह ढिल्लों, और आज वो मेरे व्हाट्सएप पे है और ऑस्ट्रेलिया में है, पर एंजॉयिंग विद हिज किड्स. उनका रीजन सिर्फ मोटो एक ही था, सर इंग्लिश आ जाए बस बहुत है, मैं वहां पर एंजॉय करना है मुझे मेरे बच्चों के साथ, बस इसलिए मैं जा रहा हूँ. तो देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग. इट्स सेम केस विद अस आल्सो. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एज से बड़े हो गए, नहीं है. यू बिकम ओल्ड विद योर थॉट्स. सो ऑलवेज कीप योर थॉट्स लाइक अ किड. बच्चों की तरह अपने थॉट्स रखो, और वो रखने बहुत इजी है. सिर्फ एक ही चीज नहीं करनी, ग्रीवियंस टुवर्ड्स अदर्स. इफ वी लीव ऑल द ग्रीवियंसेस टुवर्ड्स अदर एंड एंजॉय आवर लाइफ, यू कैन एंजॉय बेटर मैनर. कमिंग बैक ऑन आवर फ्यूचर, क्योंकि आपका फ्यूचर है इसलिए मैंने आपको इतनी बात बताई. कमिंग ऑन आवर फ्यूचर, इट्स वेरी इजी, वी विल लर्न विद इन मिनट्स. देखो स्टूडेंट्स, इसका जो सिंपल पार्ट है वो है गा, गे एंड लास्ट इज गी. मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, पीऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, ये सब वर्ड फ्यूचर के अंदर आते हैं. क्लियर है? अब मैं सोऊंगा, कोई इंग्लिश बताइए इसे. यूनिक वर्ड, आई गो टू बेड. क्या वर्ड यूज करेंगे? आई गो टू बेड, राइट. तो आपने देखा, आपने लगाया आई, आपने लगाया विल, आपने लगाया गो, आपने लगाया टू, आई गो टू बेड. पर अब मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि आप आई विल की जगह आई यूज करो. मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल का यूज नहीं होता है. शेल आई और वी के लिए यूज होता है. लाइन ऑपोजिट होता है, लैंग्वेज प्रॉमिस और डिटरमिनेशन हो, ये सब बातें भूल जाओ. सिर्फ कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को हम सिखाते हैं कि शेल का यूज क्या है. वो भी इसलिए क्योंकि उनके कॉम्पिटिशंस में आती है. या फिर हमारी जो फोर्थ बुक आ रही है स्पोकन इंग्लिश ग्रामर की, उसमें वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना भी चाहिए, और आज के दौर के लिए जरूरी है, एसएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए. पर अगर हम लोग स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी नीड नॉट टू यूज शेल एंड ऑल दिस थिंग्स. मॉडर्न इंग्लिश सेज यू शुड यूज आई और विल. तो यू शुड यूज आई, बोलिए यू विल, दिल, वे जाएंगे, दिल गो, मैं आऊंगा, आई कम. आई विल कम मत बोलना कभी भी, क्या बोलोगे? आई विल कम. शी लाफ, वह हंसेगी, शी लाफ, शी लाफ, राइट. तो टॉक लाइक दिस, you will be in a more dynamic way. Coming on our next thing, रहा भी तो किया था बच्चों हमने, रहा है कर लिया, रहा था कर लिया. तो why not we should do रहा होगा. उसका नाम क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. हमने उसमें क्या किया था? इजर लगाया था. पास्ट के अंदर क्या किया था? वॉज वर लगाया था. इसमें हम विल भी लगाएंगे. तो हम नोटिस करेंगे विल बी वही वर्ब की बस फॉर्म, वही आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट. ठीक है. हमने रहा तो सेम लगाया, सिर्फ फ्यूचर के लिए क्या किया? होगा, और कुछ नहीं. मैं जा रहा होऊंगा, क्या इंग्लिश होगी इसकी? आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग. ठीक है. मैं जा रहा होऊंगा, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? आई विल बी गोइंग. हम खेल रहे होंगे, क्या वर्ड यूज होगा? आई विल बी प्लेइंग. हम हंस रहे होंगे, हम विल बी, विल बी. ठीक है. वे आ रहे होंगे, they will be coming.
ठीक है, तो हमने नोटिस किया कि रहा रही इज वेरी इजी फॉर अस, अब हमें इस ये बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। कमिंग ऑन नेक्स्ट थिंग, हमने चुका वर्ड सीखा था अभी भी परफेक्शन के अंदर, राइट है, कोई काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, तो क्यों ना हम इसके अंदर भी एक काम करें, चुका होगा। क्या वर्ड यूज है? चुका होगा। दूसरा वर्ड क्या होगा? चुकी होगी या फिर चुके होंगे, ऐसे कुछ होगा, राइट, लिया होगा, दिए होंगे, कुछ कुछ है ना। तो लिखिए, हम टेंसेस सीख चुके होंगे, क्या इंग्लिश होगी? वी विल हैव। वेरी गुड, आपने हैव इसको सीखा ही था, तो इसमें हम क्या करेंगे? विल हैव लगा देंगे। और अगर हमने पास्ट किया है तो चुका है तो सीखा है, चुका था होगा तो हैड लगा देंगे, इतना ही फर्क है बस। और प्रेजेंट है तो हैव और हैज लगा बस। तो हमने एक बात नोटिस करी, लुक अप हियर, अगर हमने परफेक्ट सीखना है, तीनों का सीखना है, तो सबसे पहले प्रेजेंट का सीखेंगे, हैव और हैज लगाएंगे। फ्यूचर का सीखना है, विल हैव लगाएंगे। पास्ट का सीखना है, हैड लगाएंगे। और इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड। वह बारिश में भीग चुका है, इंग्लिश करिए। वह बारिश में भीग चुका है, he has got wet in rain. वह बारिश में भीग चुका होगा, he will have got wet in rain. He had got wet in rain. Is it clear to all of you? तो हम लोगों ने नोटिस कर लिया है कि हम तीनों परफेक्ट सीख चुके हैं। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? हाँ जी, लास्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट विच इज रिमेनिंग स्टिल, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। You use the word future perfect continuous. Look up here students. In future perfect continuous हम लोगों ने perfect continuous में क्या सीखा था? Subject have been, has been सीखा था, right? Past के लिए had भी लगा देंगे, इतना ही फर्क है। मगर future के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं है, will have been लगा देंगे, will have been। और इसकी पहचान क्या होगी स्टूडेंट्स? Say dash 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 रहा होगा, वेरी गुड। और से डैश 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 रही होगी, से डैश 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 रहे होंगे। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस फॉर में एस और एफ लिख दूं प्लस टाइम। चलिए वे शाम से, शाम मतलब इवनिंग बोल रहा हूं मैं, वे शाम से मोबाइल पर बात कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन, मैडम विल हैव बीन, दे विल हैव बीन टॉकिंग ऑन मोबाइल इवनिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब मुझे एक बात और बताइए स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने टेंसेस के तो पार्ट सीखे, तो मेरे साथ एक छोटी सी बात करिए कि टेंस कितने पार्ट्स के हैं? 3। एक यूनिक बात बताऊं आपको कि एक्चुअली टेंसेस 2 ही होते हैं, टाइम 3 होते हैं। टेंसेस कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं होता, राइट? टाइम 3 होते हैं। टेंसेस में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, टेंस हमेशा 2 है, प्रेजेंट और पास्ट। अब देखिए कि हमने प्रेजेंट कर लिया, प्रेजेंट के कितने पार्ट थे? कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी पहचान क्या थी स्टूडेंट्स? का है, दे है, दी है। उसके फॉर्मूले कितने थे? 2। पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? 2 फॉर्मूले। कॉन्टिन्यूअस में अगर हम प्रेजेंट में चलते हैं तो रहा है, रहे, रही है, पर फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के अंदर मैं परफेक्ट में चलता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर मैं प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलता हूं तो पहला पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर स्लैश लगाकर हैज बीन। इज इट क्लियर? प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम। क्लियर है सबको? मगर एक चीज अभी भी पेंडिंग है, वो चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग इधर देखिए,
डू डज डिड, ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें आना ही चाहिए। अगर हमें डू डज डिड नहीं आता तो हम लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे जल्दी से किसी से। इट वुड बी अ कॉम्प्लिकेशन फॉर अस इफ यू डोंट यूज दीस थ्री वर्ड्स, डू डज एंड डिड। नो डाउट डिड मीन शोज इट इज ऑफ पास्ट, बट डू एंड डज आर ऑलवेज शोन विद प्रेजेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसकी जो पहचान है दोनों में सेम रहेगी। इसकी ये ता है, ते है और ती है, ये तभी यूज होंगे जब लाइन के अंदर क्या होगा, ता है, ते है, ती है, डू एंड डज। क्लियर? बट डिड कम्स विथ, हमने देखा था या, था, ये, थे, ई, थी, ये थी, ये थी। ठीक है, तब क्या यूज होएगा, डिड, वरना क्या यूज होगा, ता है, ते, प्रेजेंट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि डू कहां लगता है और डस कहां लगता है। तो आप लोगों को ध्यान है हैव कहां लगा था, बताइए। आई, वी, यू, दे और प्लूरल। और डस कहां लगता है, ही, शी, इट, सिंगुलर या किसी का नेम। क्लियर ऑफ यू? कमिंग ऑन अवर पॉइंट, अगर ता है, ते से सेंटेंस है और आई भी से शुरू है तो मैं बोलता हूं एक सेंटेंस, क्या मैं संडे को लेक्चर देता हूं? इंग्लिश करिए। वेरी गुड। डू आई डिलीवर लेक्चर ऑन संडे? तो आपने क्या यूज किया, डू, आई और बाद में वर्ब यूज करिए, व्हाटएवर द थिंग्स। तो हमने सिर्फ डू का यूज किया। क्या वह इंग्लिश मूवी देखता है? सी, वॉच नहीं लगेगा, वॉच लगेगा आईएनजी में। आईएनजी कंसेप्ट हो कभी भी रहा रही हो, आप डज लगा, वॉच लगाइए, वरना आप सी वर्ड यूज कीजिए। डज ही सी, ठीक है, डज यहां लगे। अब डिड पे आइए कि अगर मुझे डिड का यूज करना है तो सबसे पहले या था, ये थे आने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं एक हवेली में गया था, तो क्या मैं एक हवेली में गया था, बताइए। डिड आई गो टू एन एनक्लेव? वेरी गुड। आपने वेंट क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट्स? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब स्टूडेंट्स मैंने जो आपको ये तीनों कराए ना, इसके अलावा कभी भी क्या वाले सेंटेंसेस बने तो बहुत इजी है। रहा रही में इज एम आर बार ले आना, परफेक्ट के अंदर हैज एम बार ले आना, हैड बार ले आना, राइट, और फिर पास्ट के अंदर वाज वर बार ले आना, राइट, और बाकी जो दो है उसमें हैज या हैव बार ले आना, हैड बार ले आना, आपकी क्वेश्चनिंग बन जाएगी। बात आती है फ्यूचर की। जब फ्यूचर की क्वेश्चनिंग हो तो सब में विल बार ले आना। इट्स वेरी इजी, आपको करके दिखाऊं, देखिए। विल में हम चलते हैं, फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर का सिंपल पकड़ते हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, इंग्लिश में आइए। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, विल बार ले, विल आई क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, आई विल प्ले। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। हम किसको बार लाए जा रहे हैं, विल को। बाकी जो रिमेनिंग दो है ना, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में भी यही होगा, हमें किसको बाहर लेकर आना है, विल को, और हमारी क्वेश्चनिंग तैयार है। क्लियर ऑल ऑफ यू विद द टेंसेस? आई होप नाउ यू आर वेल वर्स्ड। हम लोग 3 मिनट्स अपनी वोकैब को देंगे और हम अपनी वोकैब में वेल वर्स्ड हो जाएंगे। मैडम ऑन करो फटाफट अब अपना मोबाइल, और हम लोग हिंदी के वर्ड्स बोलो फटाफट आप, और हम लोगों को जितने आते हो हम ट्राई करेंगे, बाकी हम लोग सीखते जाएंगे, राइट। आपके मोबाइल्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गए ये सारे वर्ड्स, आप लोग घर पे जाकर आराम से चेकआउट करना, ये वर्ड्स आप सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम। शैल वी स्टार्ट? फर्स्ट वर्ड क्या है, भारी वर्षा, जल्दी बोलिए। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट, दोपहर का आराम, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी, रिश्तेदार, ये 13, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, प्यास बुझाने को क्या कहते हैं, क्वेंच द थर्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, दशक, डिकेड, वेरी गुड। हवेली, एनक्लेव। नेक्स्ट, वंशज, स्कियन, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी, अधिक खर्चीला, स्पेंड। एक और वर्ड सिखाया था मैंने आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी, बताना, पोएम सुनाना, रिसाइट, और सच बोलना, और चुटकुला सुनाना, वेरी गुड। नेक्स्ट, बोलो जोर से। नेक्स्ट, घूमना फिरना, गेड़िया मारना, वॉन्डरिंग। और एक और वर्ड, लॉइटरिंग, LOITERING, लॉइटरिंग। नेक्स्ट,
पा कौन पुण्य है? सीन और मैरिज। जल्दी बोलिए मैडम। साथ निभाना, हाँ जी, Stand by. स्टैंड बाय। नेक्स्ट, संस्कार, Sacrament. वेरी गुड, संस्कार, सेक्रामेंट। नेक्स्ट, लंगोटिया दोस्त, हाँ जी, जम फ्रेंड। और पक्का दोस्त, बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट, झुका देने वाली बात, हाँ जी, स्कॉर्चिंग हीट, वेरी गुड। सोने पर सुहागा, हाँ जी, I बताएं। परम पावन, नेक्स्ट, सैक्रोसैंक्ट, बहुतों का सोना, Stuffy inside. वेरी गुड, स्टफी इनसाइड। नेक्स्ट, जिसा बेटा कार्य, घिसा पिटा कार्य, स्टीरियोटाइप, वेरी गुड, शाबाश। एडजस्टेबल, हाँ जी, एडजस्टेबल, अपने आप को माहौल में एडजस्ट करने वाला, वर्सटाइल। हाँ जी, नेक्स्ट, प्रशंसित, हाँ जी, पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, ब्रिदन्स, शाबाश, वेरी गुड। सुधीर टोल्ड, वेरी गुड। क्रिएटिव, क्रिएटिव बिजनेसमैन, क्रिएटिव बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, क्या वर्ड यूज होता है? एंटरप्रेन्योर। कंजूस व्यक्ति, वेरी गुड ऋतु मैम। चुगलखोर, शाबाश ज्योति मैम। अता पता, गुड अंशुल। और टर्मिनेट लेटर, हाँ हाँ दीपांशु बोलो। वॉकिंग पेपर, मस्सा, वॉट। और लवारिस और बेगर, वेफ, WAIF। और नेक्स्ट कम तिल, और खाने वाले तिल। और मैं बोलूं कि आपसे जामुन और सैतूत, पेचीदा मसला, पेचीदा मसला। मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था ये वर्ड, वेक्स्ड इशू, VEXED, वेक्स्ड इशू। फैशन, आवारा, आवारा, गलियों में घूमने वाला, वैगाबॉन्ड। घूंघट, सिंदूर, वर्मिलियन, शाम की पूजा, इवनिंग हाइम्स। और नेक्स्ट कम्स, इवनिंग हाइम्स हो गया, हाइम्स। एक और नया वर्ड होता है वेस्पर्स, गुली डंडा, चिपकैट, गुदगुदी, टिक्कल, लोरी सुनाना, सिंग ललाबी, और जिद्दी, stubborn. Students, I hope now you have learned your vocabulary building. You have learned today almost 50 words new, right? Apply them and we will have a test tomorrow. कल आपसे सुन लेंगे। आप लोग बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करके आना। आपके ग्रुप्स के अंदर आगे आप WhatsApp पे देख लेना, right? We have learned tenses a lot. Try your best. If still there is any problem with any tense, you can ask by tomorrow onwards. Thank you very much. Enjoy your life. Okay, students?